بیٹا، کبھی سوچا ہے کہ اگر اللہ کسی انسان کو فوراً پکڑ لے تو ہم سب کا کیا بنے؟ یہ الفاظ کسی کتاب کے نہیں تھے، یہ الفاظ اس بزرگ کے تھے جو ہر نماز کے بعد مسجد کے کونے میں بیٹھ کر خاموشی سے روتا کرتا تھا۔ اس دن بھی وہ رو رہا تھا۔ مسجد میں لوگ تھے لیکن کسی کو اس کی سسکیوں کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، اور شاید اسی لیے اللہ نے اس رات ایک کہانی لکھ دی جو صرف ایک شخص کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے عبرت بننے والی تھی۔ ایک کہانی اللہ کے خوف کی، قدرت کے رازوں کی، اور اس وقت کی جب اللہ انسان کو بولنے کا موقع دینے سے پہلے صرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کہانی کا کیندر ایک عام سا آدمی تھا۔ نام اس کا رشید تھا۔ نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی دانشور، نہ کوئی مشہور شخص، بس ایک عام انسان جو شہر کے ایک پرانے علاقے میں رہتا تھا، جہاں گلیاں تنگ تھیں اور گھر ایک دوسرے سے چپکے ہوئے تھے۔ رشید کو لوگ سمجھدار کہتے تھے، چالاک کہتے تھے، اور کچھ لوگ دل ہی دل میں اسے تیز دماغ والا بھی سمجھتے تھے۔ وہ ہمیشہ فائدے کا سوچتا تھا، نقصان سے دور بھاگتا تھا، اور جو چیز اسے ترنت پیسہ دے سکتی ہو اس کے لیے وہ ہر حد کراس کر لیتا تھا۔ نماز؟ ہاں، کبھی کبھی، جب دل چاہے، جب وقت ہو، جب کام کم ہو۔ اللہ کا ذکر زبان پر تھا لیکن دل میں بوجھ بن چکا تھا۔ وہ اکثر کہتا، اللہ غفور الرحیم ہے، سب معاف ہو جاتا ہے، مگر اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اللہ شاہد بھی ہے۔ رشید کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ گناہ کرتا تھا، مسئلہ یہ تھا کہ وہ گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ چکا تھا۔ اس کے لیے جھوٹ صرف بزنس سکل تھا، دھوکہ صرف عقل مندی تھی، اور کسی کا حق دبانا صرف مجبوری۔ وہ کہتا، دنیا اسی طرح چلتی ہے، اور جب کبھی رات کو تنہا ہوتا تو دل کے کونے میں ہلکی سی چبھن ہوتی، لیکن وہ فوراً ٹی وی آن کر لیتا، موبائل سکرول کر لیتا یا نیند کا بہانہ بنا کر سو جاتا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا ضمیر اس سے بات کرے۔ رشید کے گھر میں برکت تھی لیکن سکون نہیں تھا، پیسے آ رہے تھے لیکن چین جا رہا تھا، اس کے بچے ہنسی ہنسی کرتے تھے لیکن اس کی بیوی کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک خاموش شکایت رہتی تھی، وہ شکایت جو لفظوں میں نہیں ہوتی، صرف خاموشی میں محسوس ہوتی ہے۔ اور رشید وہ سب دیکھ کر بھی انجان بنا رہتا، کیونکہ جب اللہ کسی کو دھیرے دھیرے چھوڑ دیتا ہے تو سب سے پہلے اس کی سمجھ چلی جاتی ہے۔ اس وقت رشید کو کیا پتا تھا کہ اللہ اس کی زندگی میں اشارے بھیجنا شروع کر چکا ہے، اور جو اشارے اللہ دیتا ہے وہ شور نہیں کرتے، صرف وقت لیتے ہیں، اور جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو پھر یا تو انسان سنبھل جاتا ہے یا پھر کہانی بن جاتا ہے۔ اور رشید اب صرف کہانی بننے کے قریب تھا۔ گناہ ہمیشہ چیخ کر نہیں آتا، اکثر وہ عادت بن کر آتا ہے۔ راشد کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ شروع میں صرف اتنا ہوتا تھا کہ وہ تول میں تھوڑا سا کم کر دیتا، صرف اتنا کہ کسی کو محسوس نہ ہو۔ پھر اس تھوڑے کی حد بڑھنے لگی، آج 10 روپے، کل 100، اور پھر وہ دن آ گیا جب راشد نے خود سے کہہ دیا، سب یہی کرتے ہیں۔ راشد کے لیے اب ہر فیصلہ صرف فائدے پر ہوتا تھا۔ جو چیز اس کے منافع کم کرتی وہ اس کے لیے بے وجہ ہوتی۔ اس نے قرض دار کو سختی سے ڈانٹ دیا، مزدور کی مزدوری روک لی، اور جب کسی نے پوچھا تو صرف اتنا کہا، کام ٹھیک نہیں تھا۔ مگر حق روک لینا کام کی کمی نہیں ہوتی، وہ دل کی سختی ہوتی ہے۔ راشد کا دل سخت ہوتا جا رہا تھا۔ نماز اب اور کم ہو گئی، جمعہ کبھی کبھی، اور جب ہوتی بھی تو سجدے میں صرف ایک ہی دعا ہوتی، یا اللہ کام میں برکت دے، نہ کبھی یہ دعا کہ یا اللہ مجھے غلط سے بچا۔
राशिद अल्लाह से मांगता था, लेकिन अल्लाह से डरता नहीं था। एक दिन उसके पास एक आदमी आया, चेहरा थका हुआ, आंखों में लाचारी। उसने कहा, भाई मेरी अम्मी बीमार हैं, जो पैसे बने थे वो पूरे दे दो। राशिद ने कागज देखा, हिसाब लगाया और कहा, अभी मुश्किल है। वो जानता था कि मुश्किल नहीं है, मगर उस दिन राशिद ने सिर्फ पैसा नहीं रोका था, उसने किसी माँ की दवा भी रोकी थी। उस रात राशिद को नींद नहीं आई। उसकी आंखों के सामने वो आदमी बार बार आ रहा था, मगर राशिद ने फिर वही किया जो वो हमेशा करता था। उसने जमीर को चुप करा दिया, मोबाइल उठाया, दिमाग भटकाया और सुबह उठकर फिर काम में लग गया। गुनाह जब रोज का रूटीन बन जाए ना, तो फिर खौफ मर जाता है। दिन गुजरते गए, राशिद का कारोबार बढ़ता गया, नाम भी, डर भी, लेकिन वो डर को पहचान नहीं पा रहा था। वो समझता था ये स्ट्रेस है, थकान है, मगर असल में ये अल्लाह के खौफ का पहला साया था। एक दिन मस्जिद के बाहर उसी बुजुर्ग ने राशिद को रोका जिसका जिक्र कहानी के शुरू में हुआ था। बुजुर्ग ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, जब रिस्क ज्यादा हो जाए और सजदा कम तो डरना चाहिए। राशिद मुस्कुरा दिया। उसने सोचा, बूढ़े लोग, पुरानी बातें, और वो चल दिया। राशिद को नहीं पता था कि अल्लाह ने उसकी जिंदगी के अगले दरवाजे पर लिख दिया है कि अब इशारे और वाजे होंगे। और जब अल्लाह इशारे वाजे करता है तो फिर उन्हें नज़रअंदाज करना बहुत महंगा पड़ता है। गुनाहों का सफ़र अब सिर्फ आदत नहीं रहा था, वो इम्तिहान बन चुका था। अल्लाह जब किसी को फौरन नहीं पकड़ता ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो गाफिल है। इसका मतलब होता है अभी मोहलत बाकी है। राशिद की जिंदगी में भी ये मोहलत शुरू हो चुकी थी। पहला इशारा उसे ख्वाब के जरिए मिला। उस रात राशिद ने देखा कि वो एक अंधेरी गली में चल रहा है। गली तंग होती जा रही है, दीवारें करीब आती जा रही हैं और हवा भारी होती जा रही है। अचानक उसके पांव के नीचे जमीन खिसक जाती है। वो गिरता है और नीचे सिर्फ अंधेरा होता है। न चीख की आवाज, न जमीन का निशान, सिर्फ एक आवाज जो कहती है, अब वापस का रास्ता नहीं। राशिद हड़बड़ा उठा, सीना पसीने से भीगा हुआ था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सुबह उठकर कहा, बस ख्वाब था। दूसरा इशारा लोगों के जरिए आया। राशिद के कारोबार में अचानक झगड़े बढ़ने लगे। जो लोग कभी खुश रहते थे, अब आंखों में शिकायत लिए खड़े थे। किसी ने कहा, हिसाब ठीक नहीं, किसी ने कहा, वादा पूरा नहीं हुआ। राशिद गुस्सा करता, मगर अंदर ही अंदर उसका दिल हिलने लगा था, क्योंकि सब एक ही बात कह रहे थे। तीसरा इशारा उसके घर में आया। उसका बेटा, जो पहले खामोश रहता था, अचानक पूछ बैठा, अब्बू, अल्लाह सब कुछ देख रहा होता है ना? राशिद कुछ पल चुप रहा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो सिर्फ इतना कह सका कि हाँ बेटा, देख रहा होता है। मगर उस पल राशिद को लगा जैसे ये सवाल उसके बेटे ने नहीं, अल्लाह ने पूछा हो। फिर आया सबसे भारी इशारा। एक रात राशिद मस्जिद के पास से गुजर रहा था। अंदर से कुरान की तिलावत आ रही थी। आयात थीं, और तुम्हारा रब गाफिल नहीं उन आमाल से जो तुम कर रहे हो। राशिद के कदम रुक गए। दिल ने कहा, अंदर चलो। दिमाग ने कहा, देर हो रही है। और राशिद चल पड़ा। उस रात राशिद बहुत देर तक जागता रहा। उसने जिंदगी का पहला खौफ महसूस किया। वो खौफ जो सजा का नहीं होता, बल्कि अल्लाह के रूठ जाने का होता है। मगर सुबह हुई और फिर वही रूटीन, कारोबार, फायदा, मसरूफियत, क्योंकि इशारे तब तक काम नहीं करते जब तक इंसान उन्हें समझना न चाहे। और फिर अल्लाह ने फैसला कर लिया। अब इशारा नहीं, आजमाइश आनी थी। ऐसी आजमाइश जो राशिद को मजबूर कर देगी कि वो या तो टूट जाए या झुक जाए। और यह आजमाइश बिल्कुल करीब थी, इतनी करीब कि राशिद की जिंदगी अब सिर्फ एक सांस के फासले पर थी। कभी कभी अल्लाह
इंसान को सीधा रास्ता दिखा देता है और कभी उसे जमीन पर बिठा देता है। राशिद के साथ भी यही हुआ। वो दिन बिल्कुल आम था। सुबह उठना, कारोबार की तैयारी, दिमाग में पैसों के हिसाब। मगर उसे क्या पता था कि आज का दिन उसकी पूरी जिंदगी का हिसाब मांगने वाला है। दोपहर के करीब अचानक उसकी दुकान पर शोर मच गया। पुलिस की गाड़ी, लोगों का जमा होना और एक कागज जो राशिद के हाथ कांपते हुए पकड़ा दिया गया। उस पर लिखा था फ्रॉड और धोखे का मुकदमा। राशिद के कान सुन्न हो गए। आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। वो कहना चाहता था गलतफहमी है, मगर आवाज ही नहीं निकली। कभी कभी सच इतना भारी होता है कि झूठ भी बोलने से डर लगता है। लोग जो कल तक उसके साथ मुस्कुराते थे, आज दूर खड़े थे। किसी की आंखों में हैरानी थी, किसी में खुशी और किसी में सिर्फ खामोश तस्दीक। जैसे सब कह रहे हों, हम जानते थे। राशिद को पहली बार महसूस हुआ कि जब अल्लाह इज्जत छीन लेता है ना, तो लोगों की नजर तलवार बन जाती है। उस रात राशिद घर नहीं गया। वो पुलिस स्टेशन के एक ठंडे कमरे में जमीन पर बैठा रहा। न मोबाइल, न आवाज, न सहारा। सिर्फ दीवार पर लटकती घड़ी जो हर सेकंड के साथ उसकी सांस गिन रही थी। वक्त जब गिनता है ना, तो पैसा नहीं गिनता, गुनाह गिनता है। उस कमरे में बैठकर राशिद ने जिंदगी में पहली बार अल्लाह को पुकारा। लेकिन ये पुकार आदत वाली नहीं थी, ये टूटे हुए दिल की पुकार थी। या अल्लाह, अगर ये तेरी पकड़ है तो मैं कमजोर हो गया हूं। आंखों से आंसू बह निकले, और आंसू जब सजदे के बगैर गिरते हैं ना, तो भी अल्लाह तक पहुंच जाते हैं। अल्लाह को अल्फाज नहीं चाहिए होते, उसे टूटे हुए दिल पसंद है। सुबह हुई, राशिद को छोटी सी जमानत पर घर भेज दिया गया। मगर घर अब घर जैसा नहीं रहा था। बच्चे खामोश, बीवी की आंखों में सवाल और घर की दीवारों में जैसे शिकायत बस गई हो। राशिद ने शीशे में खुद को देखा। वो चेहरा जो कभी फख्र से भरा होता था, आज शर्म से झुक गया था। उस रात राशिद को फिर वही ख्वाब आया, अंधेरी गली। मगर इस दफा जब वो गिरा तो नीचे जमीन थी और आवाज आई, अब रुक जा। राशिद की आंख खुल गई, सीने पर हाथ रखा, सांस गहरी ली और पहली बार उसने सोचा, शायद अल्लाह ने मुझे अभी पूरी तरह छोड़ा नहीं। अल्लाह जब गिराकर भी सांस बाकी रखे ना, तो वो सांस अमानत होती है। राशिद अब दो रास्तों के बीच खड़ा था। या तो वो सब कुछ अल्लाह पर छोड़कर झुक जाए, या फिर अपनी आदत की तरह सब कुछ संभालने का ड्रामा करे। और यहीं से उसके दिल की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली थी। रात गहरी थी और राशिद जाग रहा था। घर के सब लोग सो चुके थे, मगर उसकी आंखों से नींद जैसे नाराज होकर चली गई थी। वो जाकर कमरे के कोने में बैठ गया। न कोई तस्बीह, न कोई जानमाज, सिर्फ जमीन और एक थका हुआ दिल। राशिद के अंदर दो आवाजें थीं। एक कहती थी, सब ठीक हो जाएगा, लोग भूल जाएंगे, फिर से शुरू कर लेना। और दूसरी आवाज बहुत हल्की मगर बहुत सच्ची, जो अल्लाह से छुपा था वो अल्लाह ने खोल दिया। राशिद ने आंखें बंद की। उसने अपनी जिंदगी को फिल्म की तरह चलते देखा। झूठ, धोखा, रुके हुए हक और वो चेहरे जिन पर उसने सिर्फ फायदा देखा था। उसकी आंखों से आंसू गिर गए। राशिद ने पहली बार बिना कोई वजह बनाए कहा, या अल्लाह, मैं गलत था। न कोई दलील, न कोई मजबूरी, सिर्फ कबूलियत। मैंने तेरे बंदों को तकलीफ दी और तुझे याद तब किया जब खुद टूट गया। उसका गला भराया, या अल्लाह,
अगर तू मुझे माफ ना भी करे तो मुझे सुधार दे। सुबह हुई। राशिद बदला हुआ नहीं लग रहा था, मगर झुका हुआ जरूर लग रहा था। उसने सबसे पहले उन लोगों को बुलाया जिनका हक उस पर था। किसी को पैसा वापस दिया, किसी से माफी मांगी, और जहां माफी ना मिली वहां खामोशी से सर झुका लिया। क्योंकि जो अल्लाह के डर में झुक जाए ना, वो लोगों के सामने झुकने से नहीं डरता। केस अभी खत्म नहीं हुआ था, नुकसान बाकी था। लोग अभी भी बातें करते थे, मगर राशिद के दिल में एक अजीब सा सुकून आ गया था। वो सुकून जो सिर्फ ये कहने से मिलता है, अब जो होगा अल्लाह के हाथ में है। कुछ महीनों बाद राशिद का केस फैसले तक पहुंचा। सजा हुई, नुकसान भी, मगर उस दिन जब वो अदालत से निकला तो उसके चेहरे पर खौफ नहीं था। उसने आसमान की तरफ देखा और बस इतना कहा, शुक्र है तूने मुझे जिंदा ही पकड़ लिया। आज राशिद पहले जैसा अमीर नहीं था, मगर जब वो सजदा करता तो दिल हल्का होता। आज वो जब कुरान सुनता तो आंखें भर आती, और जब किसी मजबूर को देखता तो अपना पुराना चेहरा याद आ जाता। हो सकता है राशिद की कहानी यहीं खत्म हो जाए, मगर हमारी कहानी वो अभी चल रही है। सोचना ये है कि जब अल्लाह इशारे दें तो हम राशिद बनकर सुधरेंगे या सिर्फ कहानी बनकर रह जाएंगे। क्योंकि अल्लाह का खौफ सजा से पहले भी होता है, और कुदरत के राज अक्सर मोहलत में छुपे होते हैं।